Okay, so how many of you, know the basic punctuation rules? You all know that in IELTS, uh, a lot of punctuations are required to be utilized. This includes full stop, comma, question mark, semicolon, colon, apostrophe. But one of the most underrated, for instance, one of the most underrated conclusion. One of the most underrated punctuations is semicolon. And I have seen students, that they do not utilize semicolons properly. Now, let me tell you that why we need to utilize semicolons and how this can help us in IELTS is something that I'm going to take today. It should be a session of only 4 to 5, minutes, probably not more than 10 minutes. So IELTS writing test is scored on the basis of grammar, spelling, vocabulary, coherence, centennial range, organization, and punctuation. Now, you all know that, these are the four parameters, or these are few of the parameters on which your writing is getting tested. And you all know that how difficult it is to score, 7.5 bands in writing. It is very much easier to score in listening. You may even score in reading, but, getting a score of 7.5 bands in writing is a daunting task. So आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस एक छोटी सी चीज है जो आप इसको अगर गौर से देखो, सेंटेनियल रेंज. नाउ व्हाट इज दिस सेंटेनियल रेंज? सेंटेनियल रेंज का मतलब होता है कि आपके सेंटेंसेस में रेंज कितना है. सो आई नो दैट फॉर दिस यू नीड टू नो हाउ टू मेक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बट एक छोटा सा सेमीकोलन का इस्तेमाल करके भी आप सेंटेंस की लेंथ को बढ़ा सकते हो, नंबर वन. And you can also show to the examiner that you have got a great centennial range. Let me tell you, students, how many of you, I would like to have a very honest, opinion from you, or rather, I would like to have an honest comment from you. How many of you utilize semicolon in your essay? I wish to, I want you people to write yes or no in your, chat box. How many of you have ever utilized semicolon in your essay or in your writing? Say yes or no. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूटिलाइज सेमी कॉलन इन योर ऐसे? सिर्फ दो लोगों का आंसर, हाँ, सबका नो आंसर आ रहा है, एक भी बंदे का यस नहीं आ रहा है. सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज सेइंग दैट यस वी हैव नॉट यूटिलाइज सेमी कॉलन. लेट मी टेल यू, इसको इस्तेमाल करने से आपके सेंटेंस की रेंज बढ़ सकती है. बहुत छोटा सा चेंज करना पड़ेगा और आपका सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, और एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपके पास सेमी कॉलन की काफी और सेंटेंसेस की काफी रेंज है. सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. लेट अस गो अहेड. जस्ट अ मिनट. I'm not going to take the other ones. I am only going to take the, semicolon. Okay. So one of the most underrated and underused punctuation rules in IELTS is the semicolon. The semicolon symbolize with semicolon. आपको पता है semicolon को कैसे लिखा जाए? And can be utilized to join two closely related sentences together, but we seldom use it. जैसे कि मैं example देना चाहूँगा. I watched a movie. It had an amazing storyline. I have an exam tomorrow. I can't party tonight. आप देख सकते हो कि दोनों sentences एक दूसरे से तकरीबन तकरीबन जुड़े हुए हैं. Now what I have done is I have joined two independent sentences together with the help of a semicolon. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि फर्ज करो आपने ऐसा बोला है कि I watched a movie. It's an independent clause, independent sentence. It had an amazing storyline. शायद आपने कोई ऐसा मूवी देखा जिसकी स्टोरी लाइन बहुत बेहतरीन थी, अमेजिंग थी, तो आप ऐसा बोलते हो, इट हैड एन अमेजिंग स्टोरी लाइन. तो आपके दो सेंटेंसेस है. आई वॉच्ड अ मूवी जिसकी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, एंड इट हैड एन अमेजिंग स्टोरी लाइन, अगेन 5 वर्ड्स. दिस आर टू इंडिपेंडेंट कॉमन सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस है. लेकिन अगर वो दोनों जुड़े हुए हैं एक से, तो आप बीच में सेमीकोलन का इस्तेमाल करके यू कैन ज्वाइन टुगेदर. सेकेंडली, आई हैव एन एग्जाम टुमारो. आई कांट पार्टी टुनाइट. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, लेकिन इसका आप जोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए सेमीकोलन. नाउ लेट मी गो फर्दर इनटू सेमीकोलन. लेकिन इसके पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है और सेमीकोलन का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है. So let me tell you that what is a compound sentence. A compound sentence is a sentence in which there are two independent clauses. जैसे कि I am a teacher, my wife is a lawyer. छोटा सा है, 2 मिनट लूंगा मैं इसमें. I am a teacher, comma, and my wife is a lawyer. So आपने क्या किया कि you join two sentences with the help of words like and. फिर दूसरा सेंटेंसेस, she tried to lift the suitcase but it was too heavy. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, आपने जोड़ा उससे बट को. फिर तीसरा सेंटेंस, he didn't have enough cash, he paid by credit card. You utilize so से आपने दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट जो थे उसको जोड़ लिया. नंबर 4,
we can take a bus to the museum, we can just walk there. So we can take bus to the museum or we can just walk there. So you can see that, we have joined two independent sentences with the help of words like and, but, so और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आप एक सेंटेंस में बनाते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक एंड, बट और सो, जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड, बट, सो और। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको ये नहीं करना है, एक तो तरीका ये है, तो आप इसको निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, जॉन फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, कॉमा, बट कैथलीन डिड नॉट फिनिश हर्स। तो आप ऐसा कर सकते हो, instead of writing but, you can only say John finished all his homework, सेमीकोलन कर दीजिए, Kathleen did not finish hers. So वापस मैं कहना चाहूंगा, तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो कंपाउंड सेंटेंसेस आपने बनाए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 4 वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो थे, जिसका मतलब था एंड, बट और सो। तो ये एक तरीका हुआ। पर दूसरा तरीका ये भी है कि आप अगर एंड, बट और सो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म कीजिए, बाद में सेमीकोलन लगाइए और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा, इट विल शो टू द एग्जामिनर दैट यू हैव गॉट ग्रेट सेंटेनियल रेंज। मैंने आपको शायद, अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखते हैं आईएलटीएस का, तो उसमें 7 और 8 बैंड्स और 9 बैंड्स के आगे लिखा है कि यू शुड शो टू द एग्जामिनर दैट यू हैव द एबिलिटी टू मेक रेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो एक तरीका तो ये है जो आपने बताया कंपाउंड सेंटेंस को बना के, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एंड, बट और सो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेमीकोलन का, विद द हेल्प ऑफ, उसको एंड, बट और सो निकाल दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा और आप लगा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ, यू कैन मेक अ वंडरफुल सेंटेंस। इज दिस थिंग्स क्लियर, आर दिस थिंग्स क्लियर टू यू और नॉट स्टूडेंट्स, यस और नो? अंडरस्टूड द डिफरेंस, हाउ वेयर यू कैन यूटिलाइज सेमीकोलन। एक दूसरा सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आप हावेवर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आई वेंट टू द मूवी, full stop, however the tickets were, tickets were not available। तो आप कर सकते हो I went to the movie, बाद में सेमीकोलन कर दीजिए, और या तो फिर ऐसा कर दीजिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, let me write this example in front of you so that you can understand it properly। फर्स्ट कीजिए ऐसा सेंटेंस है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट दिस वे, जैसे कि आपने ये जब वर्ड्स का इस्तेमाल किया एडिशनली, हावेवर, आप इसको भी निकाल सकते हो, यू कैन यूटिलाइज सेमीकोलन ओवर हियर, यहाँ पे सेमीकोलन कर दीजिए, और बाद में आप हावेवर द टिकट्स वर नॉट अवेलेबल। तो इससे ये होगा समथिंग लाइक दिस। तो ये देखिए, अगर हावेवर के बदले यहाँ पे आपने फुल स्टॉप कर दिया होता, देन देयर वुड हैव बीन 2 सेंटेंसेस, और एक एक सेंटेंस में 1 2 3 4 5 और 6 7 वर्ड्स होते, मतलब एक सेंटेंस में 5 6 वर्ड्स होते। लेकिन आप फर्स्ट कीजिए, अगर आप सेमीकोलन लगाते हो तो उसी चीज को आप कर सकते हो यहाँ पे, सो आई वेंट टू द मूवी, सेमीकोलन लगा दीजिए, हावेवर, कॉमा, द टिकट्स वर नॉट अवेलेबल। इससे ये होगा कि ये जो पूरा सेंटेंस वो एक ही सेंटेंस गिना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इट विल आल्सो शो टू द एग्जामिनर दैट यू हैव गॉट द एबिलिटी टू यूटिलाइज एडवांस पंक्चुएशंस, जैसे कि सेमीकोलन। तो इससे भी ये फायदा होगा। और नहीं, आप हावेवर को रिमूव नहीं कर सकते, आप हावेवर को रखिए, लेकिन फायदा ये होगा कि आप फुल स्टॉप को रिमूव कर सकते हो, और फुल स्टॉप को रिमूव करने से क्या होगा, सेंटेंस का रेंज बढ़ जाएगा। और आईएलटीएस वही तो चाहता है कि यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट यू हैव गॉट सेंटेनियल रेंज, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो आई रिपीट, लेट अस हैव अ स्मॉल डिस्कशन वंस अगेन, स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड। जहां पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है उसको आप जोड़ने के लिए एंड, बट और सो वगैरह वर्ड्स का तो इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो ये एक रेंज हुआ। दूसरा रेंज आप ये कर सकते हो, आप क्या करें कि बट, एंड और सो निकाल दीजिए, सेमीकोलन डाल दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द मूवी, फॉर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे देखिए, जॉन फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क बट कैथलीन डिड नॉट फिनिश हर्स। तो आपने क्या किया, बट से आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा, लेकिन वही चीज को आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जॉन फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, सेमीकोलन, कैथलीन डिड नॉट फिनिश हर्स। सो दिस इज वन ऑफ द अदर वेज। और तीसरा जो तरीका मैंने आपको लिखा है, जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिख के बताया, आई वेंट टू द मूवी, एडिशनली, ओकेशनली, फर्दर मोर, ऐसे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल करते हो तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस बन जाते हैं। सेमीकोलन का इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या होगा कि ये पूरा सेंटेंस एक बन जाएगा।
एग्जामिनर ये भी देखता है कि आपने छोटे छोटे कितने वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया। सेमीकोलन लगाने से एक दो छोटे सेंटेंसेस एक बड़े सेंटेंस में तब्दील हो जाएंगे। यू विल बी गेटिंग रेंज मार्क्स ऑन और बेंड्स ऑन सेंटेंशियल रेंज। Is it getting clear, students? Yes or no? Understood the concept? First of all, write in the chat box so that I can move ahead. Understood कि कैसे आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है? बहुत ज्यादा इस्तेमाल है सेमीकोलन का, but these are few of the examples or few of the ways by which you can utilize semicolon. Understood? Very good. अब इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं चाहूंगा कि I would recommend that you people can utilize this in your essay. ऐसे में जहां पे भी फॉर इंस्टेंस बीच में इस्तेमाल करना है आपको, ये सेमीकोलन का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में, पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में न करते हुए try to utilize them in the the sentences which are between the at the center of the paragraphs. तो इससे ये फायदा होगा। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड टू द न्यू सेशन। दूसरा सेशन लेते हैं हम लोग। ओके, so here I am going to explain you how you can write introduction of any essay in 2 lines only. सिर्फ 2 लाइन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इंट्रोडक्शन को। ये बहुत अच्छा तरीका है। Now I know that many of you know how to write introduction. So can you tell me, students, how you can write an effective introduction? How many lines are required to write an effective introduction? 3 लाइंस की जरूरत पड़ती है। The first is going to be, पहला क्या इस्तेमाल होता है? The first is going to be paraphrasing. The second line is going to be the thesis statement, and third the outline statement, which is not compulsory नहीं है, लेकिन आप इसको लगा सकते हो। But you can effectively, ये जो सेशन है, here I am going to teach you how you can effectively write an introduction in only 2 lines. मैं इसमें सारे एसेस कवर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको गौर से देखें, कैसे 2 ही लाइनों में आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। वापस मैं कहना चाहूंगा that the third line outline statement is not compulsory, और ऐसा भी नहीं कि इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। But I would want you to look at this. So I want somebody to read it out for me who's going to help me out reading this. बहुत अच्छा होगा। You will be getting lot of knowledge, और उसके बाद मैं एक difficult essay type लेने वाला हूँ। But before I do that, I want somebody to help me out reading this session. Who's going to help me out? Please write in the chat box. Yes, जल्दी से फटाफट कीजिए। I want somebody to read it for me so that I can concentrate on explanation. Yes, write in the chat box. Yes, जल्दी से। Anybody who is who could help me out? Yes. Yeah, I can ask. Yep. Zulfi. Okay, Zulfi will help me out. चलिए। Yeah, Zulfi, can you read? Yes, sir. The 5 most. Yeah, please read. 5 most common IELTS writing task 2 questions are: first, discuss both views and give your opinion. 2, opinion, agree or disagree. Third, problem solution. Fourth, advantages and disadvantages. Fifth, double questions. Okay, so these are, as you all know, these are 5 fundamental types of essays in IELTS. एंड ये सारे के सारे जो एसेस हैं उसमें आप 3 सेंटेंसेस लिख सकते हो इन द इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट बीइंग पैराफ्रेजिंग, द सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इन योर एसे, और तीसरा जो है वो है आपका आउटलाइन स्टेटमेंट। बट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, we'll only take we will only write 2 sentences, and how you can effectively write that is something that I'm going to teach you. Please read, Zulfi. IELTS introductions and thesis statements. When writing the introduction of IELTS essays, there are 2 steps that need to be taken. Paraphrase the task question and write a thesis statement. If the question asks for an opinion, then it must be in the thesis statement. It depends on the type of essay you are writing, as they are not all the same. Okay, so आपको थीसिस स्टेटमेंट, आपको शायद पता होगा कि थीसिस स्टेटमेंट में जैसे कि आपको 4 टाइप ऐसे, 4 या 5 टाइप्स ऐसे है ऐसे जहां पे आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। एंड दैट ओपिनियन जहां पे आपको पूछा जाता है कि यू नीड टू गिव योर ओपिनियन। फॉर इंस्टेंस ओपिनियन ऐसे में तो सीधा ही है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, या तो फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। जो पहले टाइप का ऐसे है इसमें आपको तो दिखाना ही पड़ता है। यहाँ पे दूसरा टाइप लिखा है लेकिन वैसे पहला टाइप, तो उसमें आपको ओपिनियन देना पड़ता है, एंड ओपिनियन हैज टू बी मेंशन इन द थीसिस स्टेटमेंट। डिस्कशन में 2 टाइप ऑफ एसेज है, डिस्कस बोथ व्यूज, और दूसरा उसमें आता है टाइप डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो दूसरा जो टाइप है डिस्कशन वाले में, वहां पे भी you need to write your opinion in the second sentence, I mean the thesis statement.
In problem solution, you don't need to write the thesis statement because you don't need to, I mean, you need to write the thesis statement, but your opinion is not required. But thesis statement में आपको problem कौन सा है और solution कौन सा है वो दिखाना पड़ता है. Advantages, disadvantages में 3 टाइप ऑफ ऐसे है. उसमें advantages, disadvantages, दूसरा है advantages, disadvantages and give your opinion, और तीसरा है do you believe that advantages outweigh disadvantages. तो जो दो टाइप है उसमें advantages, disadvantages and give your opinion and advantages outweigh disadvantages, उसमें भी आपको अपना ओपिनियन थीसिस स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है. एंड इन डबल क्वेश्चन यू नीड टू गिव आंसर्स ऑफ बोथ द क्वेश्चंस. लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि इन द थीसिस स्टेटमेंट यू नीड टू राइट योर ओपिनियन. नाउ प्लीज रीड दिस. Importance of thesis statement. It is important to write a thesis statement in the introduction for every type of essay. A good thesis statement goes towards getting a good band score in the writing section. The thesis statement tells the examiner what the essay is going to be about. The conclusion of the essay paraphrases the thesis statement. ओके, लेट मी टेल यू. आपने जुल्फी थोड़ा सा जल्दी से रीड कर लिया. मैं वापस उस चीज को रीड करता हूँ, लास्ट स्टेटमेंट को. द थीसिस स्टेटमेंट टेल्स द एग्जामिनर व्हाट द एसे इज गोइंग टू बी अबाउट एंड द कंक्लूजन ऑफ द एसे पैराफ्रेजेस द थीसिस स्टेटमेंट. ये समझना बहुत जरूरी है. आप जो थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो ज्यादातर केस में कंक्लूजन में उसी का वापस रीस्टेटमेंट होता है. रीस्टेटमेंट मतलब उसी चीज का पैराफ्रेजिंग होता है. सो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर यूटिलाइजिंग पैराफ्रेजिंग स्किल्स इन नंबर ऑफ वेज. नंबर वन, जो आप पहला स्टेटमेंट लिखते हो ऐसे का, उसमें भी पैराफ्रेजिंग स्किल्स का इस्तेमाल होता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप जब थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो वही थीसिस स्टेटमेंट को आपको पैराफ्रेज करके वापस कंक्लूजन में लिखने की जरूरत पड़ती है. सो टेक्निकली स्पीकिंग इफ यू रिटन अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, आपका कंक्लूजन का स्टेटमेंट भी अच्छा हो जाएगा. प्लीज रीड इट. The thesis statement is logical way of showing the examiner what to expect in the rest of the essay. And very important statement, let me tell you students, because I have been the examiner of IELTS, we are always told by the British Council people, IDP people, that focus on the thesis statement. So मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि thesis statement पे जरा सा गौर से ध्यान से लिखे. It definitely goes a long way in you getting a great score in IELTS writing task too. Let us take the first essay. Please read. Discussion as a question. Some people think a crime should always have a fixed punishment like life for murder, while others believe you should take the circumstances of the crime into account. Discuss both views and give your own opinion. Okay, so Zulfi, can you explain me the essay? Some people think a crime should always have a fixed punishment. मतलब कुछ लोगों को लगता है कि क्राइम के लिए फिक्स पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर. हाँ, while others believe you should take this. मतलब बाकी लोगों को लगता है कि क्राइम को भी अकाउंट में लेना चाहिए कि किस तरह से सर्कमस्टेंसेस को अकाउंट में लेना चाहिए. हाँ. तो काफी लोग ऐसा मानते हैं कि देयर शुड बी अ रेसिपी फॉर एवरी टाइप ऑफ क्राइम. फॉर इंस्टेंस इफ समबडी इज इन्वॉल्वड इन स्टीलिंग, तो फर्ज करो कि इसकी 6 महीने की सजा. इफ समबडी इज इन्वॉल्वड इन मर्डर, देन द फिक्स स्टेटमेंट शुड बी डेथ पेनल्टी. तो ये काफी लोग मानते हैं. लेकिन काफी लोग ऐसा भी मानते हैं कि क्राइम किस संदर्भ में हुआ है, किस सिचुएशन के अंडर में हुआ है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए यू शुड हैव अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा. मतलब आपको ये कहना पड़ेगा, क्या आप ये मानते हो कि सब क्राइम के लिए, हर एक क्राइम के लिए एक अलग एक फिक्स स्टेटमेंट होना चाहिए, एक फिक्स पनिशमेंट होनी चाहिए, या तो फिर सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्राइम का पनिशमेंट देना चाहिए. सो लेट मी गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं. या प्लीज रीड जुल्फी. A number of people believe serious crimes need to have a set punishment, whereas others argue that the situation of the crime must be considered. Okay. I agree that. Okay, just a minute, Zulfi. Can you tell me exactly what we have done in the first sentence? हमने क्या किया है? जरा कॉल करो. Can you tell me what we have done in the first sentence? What we have done is, हमने क्या किया है, इस ये जो चीज है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट, इसका हमने पैराफ्रेजिंग कर दिया है. आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स जो पहले, हम जानते हैं कि ये चीज आप जानते हो या नहीं जानते, आई डोंट नो, बट it is important that you try to rephrase that, I mean you have these things in your mind again and again, ताकि आप गलती मत करें. तो ये जो है वो पहला सेंटेंस हुआ जिसमें आपने पैराफ्रेजिंग किया. And now the second statement is going to be the thesis statement, wherein you are going to tell to the examiner कि आप क्या मानते हो. Please read, Zulfi. I agree that the circumstances of the crime itself should be taken into account because every case is different.
So can you tell me what we have done? Do we are we agreeing with the first line or the second line? मतलब पहला जो रवैया है, पहली जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको मानते हैं या दूसरी स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं? दूसरी में हमने ऐसा कहा है कि सर्कमस्टेंसेस को भी मद्देनजर रखना चाहिए व्हेन यू डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो वो चीज हमने लिखी है सेकंड स्टेटमेंट में। आई एग्री दैट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्राइम इटसेल्फ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। अगर आपको आई एग्री नहीं लिखना है तो व्हाट इज द अदर वे आउट? कैसे लिखोगे आप? व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग आई एग्री? मतलब ये फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर आपको थर्ड पर्सन लिखना है तो भी लिख सकते हो, दिस ऐसे एग्रीज। क्या लिख सकते हो आप? दिस ऐसे। आई बिलीव तो कर सकते हो श्रवणी, यू कैन ऑल्सो राइट आई बिलीव, आई एग्री, ये भी कर सकते हो। बट व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस ऐसे एग्रीज। ठीक है, so this essay agrees that the circumstances of the crime itself should be taken into account because every case is different। तो आप ये भी कर सकते हो। याद रहे कि दिस ऐसे लिखते हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है, तो दिस ऐसे एग्री नहीं आएगा, एग्रीज हो जाएगा। और क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है तो उसमें आपको एग्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जरा याद रहे कि अगर थर्ड पर्सन लगाते हो तो पीछे एस लगाना जरूरी है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ डिस्कशन बेस्ड ऐसे जहाँ पे आपको ओपिनियन आपको लिखना है। याद रहे आप इसमें तीसरी लाइन जो आउटलाइन स्टेटमेंट है वो भी लिख सकते हो, दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस पहला, एंड जो अपना ओपिनियन है वो भी आप लिख सकते हो। दिस इज नॉट कंपलसरी, ऐसा भी नहीं लिख सकते, आप लिख भी सकते हो। लेकिन अगर ये दो सेंटेंसेस आपने ठीक से लंबे लिखे तो ये पर्याप्त है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अ बिग सेंटेंस देन आई वुड वांट यू टू राइट 3 सेंटेंसेस। क्योंकि देखो ये दो बड़े सेंटेंसेस बन रहे हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर आपने छोटे 5 या 3 वर्ड्स के सेंटेंस है या 7-8 वर्ड्स के सेंटेंस बना रहे हो तो 2 सेंटेंस लिखोगे तो इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। इन दैट केस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर एन आउटलाइन स्टेटमेंट ताकि एक इंट्रोडक्शन बड़ा दिखे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? yes or no in the chat box? Have you understood what I'm trying to say? Zulfi, have you understood? Yes sir. Okay, very good. I want you people to outline statement का मतलब जहां पे हम ऐसे लिखते हैं, for instance wherein I am writing what this essay is going to do. This essay will first discuss that circumstances are very important, वैसे करके आप लिखते हो। ये इसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा श्रवणी, but if you are writing that in problem solution, I'll come to that part afterwards। मैं बताना चाहूंगा आपको। Okay, fine. Let us first of all understand the different type, agree disagree opinion। चलिए लिखिए, पढ़िए। Society would benefit from a complete ban on all forms of advertisements. To what extent do you agree or disagree? Okay, read it once again in your mind and explain me, Zulfi। मतलब एडवर्टीजमेंट पे बैन से सोसाइटी को बेनिफिट होगा। आप एग्री करते हो कि नहीं? All forms of, see, all you always need to focus, I mean I want everybody to focus on this। just a minute। Yeah, so you need to focus on this, all forms of advertisements, all forms of advertisements पे focus करना जरूरी है। So you need to make sure that you emphasize on that कि सोसाइटी को फायदा होगा अगर हम बैन कर दे सारे फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। पैसा नहीं कि थोड़ा सा रखना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, पूरी एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर देना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू एग्री और डिसएग्री? यहाँ पे हम डिस्कस ये नहीं करेंगे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। सो प्लीज रीड। It is argued that society would be better off if every type of advertisement was prohibited. I disagree that all advertising should be disallowed as this policy would not benefit society and would negatively impact the economy. तो हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट पे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा अगर हो जाएगा। बेनिफिट नहीं होगी और इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी हमारी इकोनॉमी को। तो पहला सेंटेंस अगेन मैंने पहले भी कहा था, अगर आप एग्री डिसएग्री करते हो तो बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट योर एसे इज इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि वो एग्री डिसएग्री वाला है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू स्टार्ट योर एसे विद इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट, या तो फिर इट इज आर्ग्यूड दैट, मेक द बाद में इसका पैराफ्रेजिंग कर लीजिए, सोसाइटी वुड बेनिफिट फ्रॉम ए कंप्लीट बैन ऑन ऑल। तो यहाँ पे लिखना है इट इज आर्ग्यूड दैट सोसाइटी वुड बी बेटर ऑफ इफ एवरी टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग वाज प्रोहिबिटेड। बैन के बदले हमने कर दिया प्रोहिबिटेड, बात तो एक ही बनती है। एंड देन इन द सेकंड स्टेटमेंट आई एम गिविंग माय ओपिनियन
मैं ऐसा बता रहा हूँ कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, आई डिसएग्री विद दिस ओपिनियन, और इससे ये होगा कि इससे इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स एवरीबॉडी? जस्ट 2 sentences टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, बस इतना किया। अब ये कैसे होगा वो आप बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 में समझाए, एंड इट कुड बी अ वंडरफुल essay. Okay, now let us go for the third one. Read. Advantages, disadvantages question. People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of technology and transportation. What are the advantages and disadvantages of this? Okay, now in the first 2 essays, that we did, the first one was discussion essay, and in which you are required to give your opinion. दूसरा जो essay था वो था opinion essay, जहाँ पे भी आपको अपना opinion देना था. But in this essay, are you required to give your opinion, Zulfi? Sorry sir, Are you required to give your opinion in this essay? पहले मुझे ऐसे समझाएंगे. मतलब अब लोगों को फ्रीडम है कहीं पे भी रहने की टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट की वजह से. Exactly. So people now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of technology and transportation. What are the advantages and disadvantages of this? So you are only required to write advantages and disadvantages, but you are not required to give your own opinion, isn't it? यहाँ पे ऐसा नहीं है, advantages disadvantages वाला पहला टाइप ऑफ ऐसे है जहाँ पे आपको ओपिनियन नहीं देना है. ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसका थीसिस स्टेटमेंट? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? आई वांट समबडी टू ट्राई आउट द थीसिस, आई मीन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस. मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए. जुल्फी, कैन यू ट्राई? आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. मैं चाहूंगा, तो पहली लाइन क्या होगी? द फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी द पैराफ्रेजिंग ऑफ द एसे स्टेटमेंट, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द थीसिस स्टेटमेंट. और मैं इंटरेस्टेड हूं कि आप थीसिस स्टेटमेंट इस टाइप ऑफ एसे का कैसे लिखते हैं. I'm going to give you 2 minutes, students, and I want everyone to try writing the introduction of this essay. 2 minutes का time. You can write in the chat box. It's a very good practice of doing it. आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे में अगर ये चीज को गौर से ध्यान से करते हो तो. You can write in the chat box. अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा. You're written, if you even tried, आप मुझे लिख सकते हो चैट बॉक्स में. there is nothing wrong in trying. I can even pass my comments. I can also share my comments. आपका इजाफा होगा राइटिंग में. Please write in the chat box. At least give it a try. अगर आपके पास नोटबुक है और आप नहीं टाइप कर सकते ठीक से तो आप मुझे डिक्टेट कर दीजिए. आई विल बी एबल टू राइट ओवर हियर. आई हैव गॉट अ गुड राइटिंग स्पीड. या इफ एनीवन वांट्स टू डिक्टेट, अगर उसने नोटबुक में लिखा है और डिक्टेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए तैयार हूँ. Very good. Janshruti has written, people have freedom to work and live in the world because of the development technology. Okay, ये आपने जनश्रुत ने लिखा है. Let me put it this over here.
So one of your colleagues, Janshruta, has written something like this: people have the freedom to work and live anywhere in the world because of the development, technology and transportation. They come to know about different cultures and work ethics also. देखिए जनसित, इसमें ऐसा है, what you've done is you just copied down the statement. मतलब पहला statement आपने directly copy कर दिया है. ऐसा क्यों किया है? They come to know about different cultures and work ethics also. नहीं, ये मतलब आप what you've done is you just copied down this. Let me, so what you need to do is students के इसको आपको copy नहीं करना है. You need to paraphrase it properly. Let me see. दूसरा है, just a minute. अंजना ने लिखा है, the advancement of the field of transport has given freedom. Okay, very good. The first statement is good. अनुजा का पहला स्टेटमेंट अच्छा है. लेट मी राइट इट ओवर हियर. लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जरूरी है अभी. दिस इज द सेंटेंस रिटन बाय, पहला जो है वो आपने पूरा चेंज कर दिया है. यू हैव कन्वर्टेड द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन हैज गिवन फ्रीडम टू पीपल टू वर्क फ्रीली. पहला स्टेटमेंट हो सकता है. मैं चाहूंगा आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिखे. तो लेट मी सी, अगर चैट बॉक्स में है कोई. राजवी हैज रिटन technology and transport nowadays people have the freedom to live. Yeah, ये भी अच्छा है. Rajvi has also written a nice statement. Let me put it over here. यहाँ पे लिखते हैं, this is written by Rajvi. So due to advent of progress of in technology and transportation, nowadays people have the freedom to stay and live anywhere across the globe. Very good. This is also one of the words you can write. ये श्रवण ने लिखा है. Just a minute. ये लिख लेते हैं. This is also nice. So this is written by Shravani. Due to the advancement in technology and transportation, people have the freedom to migrate to different places for work. एक श्रवण, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है वर्क. यू नो, दे माइग्रेट वाला ही नहीं है. You can live and work from anywhere. So yeah, traveling to across the world can be advantageous in order to gain more experience, whereas it can also lead to instability due to constant changing of workplace. देखिए, नाउ मैं चाहूंगा आप सब लोग इसको गौर से देखें. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज बाय विच यू कैन राइट. आपने दो ही सेंटेंस लिखे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. और दूसरा स्टेटमेंट आपको सिर्फ ये करना है कि एक एडवांटेज लिख दो और एक डिसएडवांटेज लिख दो. खत्म होगी बात. दैट इज गोइंग टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट. ओके, so let me see if somebody else has written. Bharti has also written. Disha has also written. There is no denying that due to technology and conveying people have privilege to work and live, the essay is going to discuss both benefits. अब दिशा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, कौन सा बेनिफिट है और कौन सा ड्रॉबैक है वो आप बारीकी से मेंशन कर सकते हो. तो ये लंबा सेंटेंस हो जाएगा. भारती इज ऑल्सो रिटन. पंकज इज ऑल्सो रिटन. देखिए, काफी लोग ऐसा लिखा है कि दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग दिस. लेट मी पुट वन मोर यू नो ऑफ वन ऑफ योर स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैं लिखता हूँ फटाफट. It is an undeniable fact that due to enhancement in technology and transportation, nowadays people have the freedom to work and migrate anywhere they want. Excellent, very good. This essay will discuss both benefits and drawbacks. इसमें कोई गलती नहीं है. इसमें आप ये कर सकते हो पंकज जी. बट मैं चाहूंगा आप क्या करें कि वो जो बेनिफिट्स है और ड्रॉबैक्स है, एक आध अगर आपके अगर दो बेनिफिट्स है दो ड्रॉबैक्स है तो बात अलग है. लेकिन एक ही बेनिफिट है तो आप कैसे लिख सकते हो? आई एम जस्ट राइटिंग. इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ राइटिंग. आई होप पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ दिस कैन बी रिटन. अब मैं इसका आंसर बताता हूं आपको. जुल्फी, कैन यू रीड? In recent times, people can reside wherever they want in the world because of the progress that has made in technology and transport. So this The is main what, advantage. sorry. So this statement is going to be the paraphrase statement of the essay statement. Understood, Zulfi? Okay. Yes, अब ये yes. दूसरा स्टेटमेट फोकस कीजिए. देखो इससे क्या एडवांटेज है. एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिखने से कितना बड़ा सेंटेंस हो जाएगा आपका. देखो दूसरा स्टेटमेंट कितना बड़ा हो गया. द मेन एडवांटेज. The main advantage is the career opportunities that a person can get outside their own country, while a possible downside would be the stress of adjusting to living in a different culture. So I hope everybody has now understood. ये लिखने से आप स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हो. द मेन बेनिफिट या तो फिर मेन एडवांटेज. The main advantage is the career opportunities that a person can get outside their own country. इससे ये फायदा होगा कि लोगों को बाहर का भी बेनिफिट मिलेगा, बाहर अपने कंट्री से बाहर का भी एडवांटेज मिलेगा. कॉमा किया आपने और वाइल, क्योंकि वाइल का मतलब वो कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव है. वाइल अ पॉसिबल डाउनसाइड मतलब डिसएडवांटेज would be the stress of adjusting to living in a different culture. उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि आपको स्ट्रेस हो सकता है कि आप अगर दूसरे कल्चर में जाके अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस और नो एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड? सो आई एम नॉट सेइंग व्हाटएवर यू रिटन इज नॉट गुड, बट एक चीज का याद रखें कि इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा हाउ दिस कैन बी इफेक्टिवली रिटन। जनश्रुत आपने ट्राई किया, बट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स जो पहली लाइन होती है उसको जितना हो सके उतना पैराफ्रेज कीजिए। तो फ्रीडम है तो फ्रीडम के बदले कुछ नहीं सोचता है तो फ्री कर दीजिए, वर्क और लीव है तो लीव और वर्क कर दीजिए, कुछ नहीं सीखता है तो आप ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन वैसे करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन बी डन। एग्जामिनर क्या देखता है कि क्या आपने प्रयत्न किया, हैव यू मेड अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ चेंजिंग द थिंग्स, कि सीधा आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। तो ऐसे केस में जितना चेंज करोगे उतना फायदा होगा। ओके, लेट मी गो टू द अदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये अच्छा है, चलो लिखो, पढ़ो जुल्फी। Advantages, disadvantages question. This needs an opinion. Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? क्या आपको लगता है कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस में? इसमें आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। So again, would you like to try or shall I start, giving the answer? Would you like to try, students, or would you want me to give the answer straight away, as you wish? Would you like to try or yes, I want, we'll try. Very good, excellent. I am getting a lot of answers. चलिए try कीजिए। Zulfi, you also try. I want you people. पहला statement होना चाहिए आपका paraphrasing, और दूसरा statement आपको क्या लगता है एडवांटेजेस का पल्ला भारी है या डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, तो आप उस पे लिखिए। आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes मोर, once again, जल्दी से paraphrase this statement. I want more and more people to try. कम से कम ट्राई कीजिए। There is nothing wrong in trying, students. गलत है तो टेंशन मत लीजिए आप। When you look at the introduction written by different students, you also tend to learn a lot. So please try. चलिए, अगर आपने पैराफ्रेजिंग भी कर दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट शोइंग दैट इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन। So this is what has been written by Jansrud. Beginning of learning a foreign language at primary school is very welcoming effort. Encourage the students for learning it and in the future they can। आपको आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ये जो लिखना है जंसरुत,
You can write in the second line. You don't need to write in the first line itself. तो पहली line तो आपका सिर्फ और सिर्फ paraphrasing ही होगा. So you need to make sure of that part. Okay. बाकी efforts अच्छा है. Bhumika is written. Bhumika Dattani. Many. Yeah. Let me see. Rahul is also written. Many educated people believe that people are. Okay. This is also being written. Bhumika is written. Let me write it over here. Okay. So many educated people believe that pupils tend to learn the foreign languages during. Okay. It is better. It is advantageous for children to begin learning a foreign language. ऐसा करके आप लिख सकते हो. There are few grammatical mistakes. Okay. So let me see. We are running out of time. So Rahul has also written. To start grasping for very good. It's a nice way of writing. Rahul has also written a very nice statement. Let me write it for you, Rahul. यही लास्ट में बताऊंगा, उसके आगे we need to go faster. Okay, यहाँ पे लिखते हैं. Some professional people believe that it is more advantageous for young ones to start grasping a foreign language at primary level than doing the same at a secondary level. तो आप ये ऐड कर सकते हो. बहुत अच्छा है राहुल. This is also very nice. चलिए. फिर rather it is in primary schooling children would be learning basic. Okay, ठीक है, ये भी अच्छा है. So let me now write the answer for you. Time is running out, students. Pankaj is also written. Okay, very good. Pankaj is also written very nice. एक मिनट. यहाँ पे some argue ऐसा नहीं है पंकज. There is no second opinion. देखिए ये अच्छा आपने यहाँ पे मैं चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा. देखिए let me put point over here. ये पंकज जी ने लिखा है. लैंग्वेज बहुत अच्छी है लेकिन I'll tell you what mistake he has committed. Just a minute. ये आप कहाँ पे लिखोगे? Some experts concur that it is very useful for children to start learning a foreign language at primary school, while some argue that it is better to do in secondary school. Okay, ये कर सकते हो आप, that is fine. But यहाँ पे दो opinions नहीं है, isn't it? So एक ही opinion है. ऐसा नहीं कि एक लोग ऐसा, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं. So that statement may not work. So this is, yeah. Can you read? Some experts argue that children should study a new language at primary school as opposed to secondary school. Very good. This is going to be your first statement. ये आपका पहला statement हुआ. Okay, Varsha is also written. Varsha, but I just let me see. Okay. Then this essay agrees that the advantages are stronger than the disadvantages because youngsters pick up and master new languages much easier than a high school age. यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा. क्या आप मानते हो कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस का? तो यहाँ पे आपको वेरी स्पेसिफिकली, वेरी क्लियरली यू नीड टू मेंशन दैट इन द थीसिस स्टेटमेंट. दिस ऐसे एग्रीज दैट द एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपको यही तो पूछा गया है. क्या आपको लगता है कि एडवांटेजेस इज आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस? तो आपको ये बिल्कुल वेरी स्पेसिफिकली यू नीड टू मेंशन इन द थीसिस स्टेटमेंट, यस एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर देन द डिसएडवांटेजेस बिकॉज. उसका कारण भी बताइए, क्योंकि आप कारण नहीं बताओगे तो इतना छोटा सा सेंटेंस हो जाएगा ना. दिस ऐसे एग्रीज दैट एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर देन द डिसएडवांटेजेस. कारण लिखिए, बिकॉज यंगस्टर्स पिक अप एंड मास्टर न्यू लैंग्वेजेस मच इजियर देन एट अ हाई स्कूल एज. एक आध एडवांटेज आपने डाल दिया कि भाई यंगस्टर्स जो है वो छोटे जब होते हैं तब उसको मास्टरी अच्छी तरह से कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू हाई स्कूल एज. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? श्योर? ओके, लेट अस गो अहेड नाउ. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा है. इसमें बहुत सिंपल सा हो जाता है. इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम सॉल्यूशन में सिर्फ आपको ये करना है, पहली लाइन जो होगी वो आपका इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग होगा और दूसरी लाइन में जस्ट यू नीड टू राइट प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है. प्लीज रीड. People who live in big cities face a number of problems in their daily life. What are the main issues people in cities face? How can this be tackled? आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जुल्फी? जो बड़े सिटीज में लोग रहते हैं, सिटीज में लोग रहते हैं, उनको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. और क्वेश्चन आपको दो, ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इट इज नॉट अ डबल क्वेश्चन ऐसे, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. व्हाट आर द मेन इश्यूज? तो इश्यूज का मतलब प्रॉब्लम्स पीपल इन सिटीज फेस. तो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 में प्रॉब्लम्स होंगे. हाउ कैन दिस बी टैकल्ड, मतलब ये सॉल्यूशन वाली बात हुई, कैसे इसका सॉल्यूशन दिया जाए. दैट इज गोइंग टू बी कमिंग इन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड फाइनली कंक्लूजन. ओके, पढ़िए. People living in large cities have to deal with many issues in their day-to-day lives. The main problems people face are high rental costs and overcrowding.
Some possible solutions would be to build more affordable housing and more green spaces. नाउ काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं एक प्रॉब्लम लिखूं या एक सॉल्यूशन, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप एक प्रॉब्लम लिखे या एक सॉल्यूशन, यू कैन इवन राइट वन प्रॉब्लम एंड वन सॉल्यूशन, क्योंकि काफी लोग ऐसा कहते हैं कि सर यहाँ पे इश्यूज लिखा है, सो यू नो दे हैव आस्क्ड इन प्लूरल, सो एम आई सपोज टू राइट टू प्रॉब्लम्स, और आई मीन दो से ज्यादा तो लिखने ही नहीं है, लेकिन सर मैं दो प्रॉब्लम्स लिखूं या दो सॉल्यूशंस? आप एक ही प्रॉब्लम और एक ही सॉल्यूशन लिख सकते हो, और दो प्रॉब्लम्स और दो सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो। ये जो थीसिस स्टेटमेंट है वो बेहतरीन एग्जांपल है जहां पे दो प्रॉब्लम्स और दो सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से एक ही थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन किया है। आई स्टार्ट। द मेन प्रॉब्लम्स पीपल फेस आर, देखने वाली बात है, आर हाई रेंटल कॉस्ट, एक प्रॉब्लम, एंड ओवर क्राउडिंग, ये दूसरा प्रॉब्लम। अंडरस्टूड एवरीबडी? एंड देन यहाँ पे आपको फुल स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो बेहतर है, एंड करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा। Some possible solutions would be to build more affordable housing, तो ये हुआ, and overcrowding के बदले and more green spaces. So you know basically what we have done is you know we have given the solutions of this. तो ऐसा नहीं है कि आप दो प्रॉब्लम और दो सॉल्यूशन नहीं लिख सकते थीसिस स्टेटमेंट में। कितनी बेहतरीन तरीके से दो प्रॉब्लम्स और दो सॉल्यूशंस के यहाँ पे जिक्र किया। याद रहे, जब आप प्रॉब्लम देते हो तो बहुत लंबा वर्ड्स नहीं होना चाहिए, वरना वो स्टेटमेंट ठीक नहीं बैठेगा। सो यू जस्ट नीड टू राइट वन, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाई रेंटल कॉस्ट, प्रॉब्लम नंबर 1 ओवर क्राउडिंग, प्रॉब्लम नंबर 2 उसका सॉल्यूशन मोर अफोर्डेबल हाउसिंग, मोर ग्रीन स्पेसेस। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? Zulfi, is it clear now how an Yes, sir. effective statement can be written? Yes, sir. या सी पंकज जी ऐसा कहते हैं कि प्रॉब्लम्स और कॉजेज में क्या फर्क है, तो ये मैं काफी बार सिखाता हूँ। प्रॉब्लम्स मतलब अगर फर्स्ट करो कि कोई चीज होती है, से फॉर इंस्टेंस ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग होता है, so can anyone tell me what are the problems of global warming and what are the causes of global warming? बहुत अच्छा सवाल पूछा है पंकज जी ने कि सर प्रॉब्लम्स और कॉजेज में क्या फर्क पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स होता ये है कि ग्लोबल वार्मिंग है, उससे प्रॉब्लम क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा कि फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा, ये उसके प्रॉब्लम्स होंगे। अर्थ का इरेगुलर क्लाइमेट पैटर्न होगा, काफी स्पीसीज मर जाएगी, और फॉर एग्जांपल मैंने बताया क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत होते हैं, ये उसके प्रॉब्लम्स है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है, वो आता है कॉजेज में। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है कि भाई आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो व्हीकल्स का, आप फॉर इंस्टेंस एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हो, उससे क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। सो आई होप पंकज नाउ द थिंग्स आर क्लियर। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है वो बात की बात है, और ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है वो उसका कॉजेज होता है। अंडरस्टूड नाउ? आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। ओके ग्रेट। तो ये भी याद रहे, काफी कबार बच्चे क्या करते हैं कि कॉजेस, इसमें अगर ये है व्हाट आर द मेन कॉजेस, अगर ये हो जाता है तो पूरा बॉडी पैराग्राफ 1 चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा बॉडी पैराग्राफ, बिकॉज यू नीड टू मेंशन द कॉजेस। सो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको कॉजेस लिखने हैं या प्रॉब्लम्स लिखने हैं, और एल्स आप बोलोगे सर बेहतरीन ऐसे लिख के आया मैं, लेकिन सिर्फ 4.5-5 बैंड मिले, क्योंकि आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में जो लिखना था वह नहीं लिखा। ओके, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस प्लीज रीड। Two-part question, direct question essay. The internet is a great source of information and has opened up opportunities for people to learn all around the world. Is all information reliable on the internet? What could be done to control information online? तो यहाँ पे भी आपको दो ही सेंटेंस लिख सकते हो आप। द फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ बोथ दिस क्वेश्चंस। ये डबल क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज ऑल इन्फॉर्मेशन रिलायबल ऑन द इंटरनेट, क्या सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जो होती है वो रिलायबल है। और दूसरा, क्या करना चाहिए कि ये जो कंट्रोल कर सके इन्फॉर्मेशन जो आती है। अभी तो ऐसा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन अपलोड द इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब की चैनल बना सकता है, अपने रिव्यूज डाल सकता है। आप देख सकते हो IELTS में भी हजारों लोगों ने अपनी चैनल डाल दी है, स्टार्ट कर दिए वगैरह, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए कि ताकि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाए। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा इज गोइंग टू बी द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट किसका होगा जुल्फी? सॉरी, पैराफ्रेजिंग किसका होगा? पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला स्टेटमेंट, हाँ, कौन से स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग करोगे आप? वो इंटरनेट वाला है, ऊपर वाला। हाँ, जो ऊपर वाला है उसका आप पैराफ्रेजिंग करोगे। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या करोगे? थीसिस स्टेटमेंट में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू स्टूडेंट्स? थीसिस स्टेटमेंट में आप ये दो सवाल है उसका जवाब दोगे, हाँ या ना? जुल्फी?
Yes, So sir. you are going to write the answers of these two questions. कौन से दो क्वेश्चन हैं? What are the two questions over here? Is all information reliable on the उसका internet? जवाब दोगे कि क्या सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो रिलायबल है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट कुड बी डन टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. चलिए अब इसका पढ़ते हैं जल्दी से. The World Wide Web is a huge source of knowledge which has created opportunities for people worldwide to study. However, not all information on the internet can be trusted. So the government needs to put measures in place to protect people from false information. तो यू कैन सी द फर्स्ट, कितना सुंदर तरीके से हमने इसको पैराफ्रेजिंग किया है. इंटरनेट का क्या बन गया? World Wide Web, वेरी गुड. ह्यूज सोर्स ऑफ नॉलेज के बदले क्या, ये ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बदले क्या कर दिया हमने? huge source of knowledge, वेरी गुड. देन व्हाट वी हैव डन एज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज, इसके बदले क्या हो गया? created opportunities, फॉर पीपल टू लर्न ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या कर दिया? people worldwide to study. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देखो कितनी तरीके से कैसे आप पैराफ्रेजिंग करते हो. आप इसको स्प्लिट कर दीजिए. इंटरनेट का बदले आप देखिए जैसे कि यहाँ पे स्प्लिट किया इंटरनेट. दूसरा ऑप्शन आपके पास है ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज पीपल ऑल अराउंड, तो वर्ल्ड वाइड कर दिया हमने. ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट. एंड नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इन विच वी आर गोइंग टू गिव आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चंस. पहला आंसर का क्या लिखा है? हाउएवर, पढ़ो सुल्फी. However, not all information on the internet can be trusted. So this is going to be just answer of first question. Okay, then So the government needs to put measures in place to protect people from false information. तो गवर्नमेंट को मेजर्स करने चाहिए ताकि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन को कंट्रोल की जाए. ये कौन से सवाल का जवाब हुआ? Second one, वेरी गुड. इज इट क्लियर एवरीबॉडी नाउ? यस और नो? ये अगर आप, मैं चाहूंगा ये जो है ये बहुत अच्छा सेशन है जहां पे आप एक कोई भी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. मैं चाहूंगा इसका अगर आपको रिकॉर्डिंग मिलता है तो इस रिकॉर्डिंग को वापस देखिए, इससे आपको फायदा होगा. कोई भी ऐसे का इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह से बार बार पढ़ने से you'll be able to exactly know how an effective introduction can be written. Any questions, any doubts, students? Yes or no? I hope the session was helpful. Okay, so yeah, just don't go away. हम लोग अभी करेंगे. We will do something else. Just a minute. Don't run away. छोटा सा एक पैसेज करेंगे. Okay, ये आपका पैसेज है सुल्फी. I want you to just read the first line. पहली लाइन पढ़े. the people of ancient Egypt emerged as one of the first Western civilizations. Okay, fine. So ये पूरा जो पैराग्राफ है it is about the pyramid. ये जो पूरा पैराग्राफ है it is about the pyramid. Okay. So yeah, Jansu, you can write in the chat box. और मैं चाहूंगा आप लोग क्या करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग. ये बहुत इजी है और मैं चाहूंगा इसको आप करें. I'm going to give you. So let us do questions number 1, 2 and 3. I'm going to give you 5 minutes for this. Question number 1, 2 and 3. चलिए. The paragraph is on the left hand side. आपको 1, 2 और 3 करना है. Get started. Zulfi, you can mute yourself. यहाँ पे हम मैप एक डायग्राम भी करेंगे. प्लीज डोंट रन अवे. कीवर्ड से जाइए आप. Yeah, I'll explain, Jansu. Don't worry. क्योंकि ये पहले 3 क्वेश्चन है, you can expect the answers to come in 2 or 3 paragraphs only.
Very good, Surya. But still you have given wrong answer, Surya. I'll tell you where you have committed a mistake. Okay. Hmm. Okay, fine. Shall I help you out, students? Do you want some time or you want me to help you out? Okay, fine. Yes, students, shall I help you out? Shall I tell you the answers? Okay. Now, see, many of you know always after the examination tell me, sir, हमने सारे आंसर्स ठीक से मिले लेकिन आंसर गलत हुए. तो यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दिखाऊंगा क्यों आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं. You know, I mean, very silly mistakes you people are committing because of which you are giving wrong answers. Okay, so I can see a lot of answers coming. काफी आंसर्स आ रहे हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कैसे होता है. हाँ, ठीक है. सिर्फ तेजस वाजा has given all the correct answers. You know, I mean. So let me see first of all. See, let me explain you students कैसे करना है. Now, first of all, go by the keywords. क्या करेंगे? Security and peace are two dash. So when you are talking about two, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर has to come in plural. काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं सर सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल अगर सेंटेंस में है तो प्लूरल सिंगुलर का इंपॉर्टेंस बहुत है. So यहाँ पे जो भी आपका आंसर होने वाला है, it's going to be plural that are necessary for a civilization to be successful. तो ये सिक्योरिटी और पीस ऐसी क्या चीज है जो जरूरी है किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप होने के लिए. तो यहाँ पे लिखा है, आई एम रीडिंग ओवर हियर, द पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशंस सस्टेन्ड बाय द रिवर नाइल एंड प्रोटेक्टेड बाय वास्ट डेजर्ट्स. द इजिप्शियंस लिव्ड इन कंपैरेटिव सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस. तो सिक्योरिटी आ गया और पीस आ गया और प्रॉस्पेरिटी भी है, लेकिन यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है, एंड पीस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. अब इस यहाँ तक हमारा आंसर नहीं है. आप सोचोगे सर इसमें आंसर नहीं है, लेकिन अब आंसर आ रहा है. व्हेन सच कंडीशंस एग्जिस्ट, सच मतलब कौन सी कंडीशंस? ये कंडीशंस कंपैरेटिव सिक्योरिटी वाली, प्रॉस्पेरिटी वाली और पीस वाली. तो ये क्या हुआ? ये चीज क्या है? दिस आर द कंडीशंस. तो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज गोइंग टू बी, इसका जो आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी कंडीशंस. याद रहे, अगर आपने सिर्फ कंडीशन लिखा है तो आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. सो क्योंकि टू लिखा है, सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी कंडीशंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन. एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर बोथ है, फॉर एग्जांपल बोथ है, तो आंसर आपको ये होना चाहिए नॉलेज कि बोथ आता है तो पीछे एंड आता ही है. दिस टू आर कंपेयर कंपैरेटिव वर्ड्स. बोथ और एंड हर वक्त साथ में ही आते हैं. ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. तो बोथ आया तो पीछे एंड आता ही है, और बोथ मतलब दो चीजें हैं. सो यहाँ पे आप देखिए कि एंशिएंट इजिप्ट यहाँ पे लिखा है. हाँ, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. माय लुक एट माय कर्सर. In about 3000 BC, Upper and Lower, Egypt were united under the first pharaoh, and generally from that time until the invasion by Alexander the Great in 332 BC, Egypt prospered as a nation of skillful craftsmen and artists. तो ये हो गया, ये क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट एंशिएंट इजिप्शियंस वर्क. यहाँ पे आपको बताया है कि कौन से दो तरीकों से वो काम करते थे. तो यहाँ पे लिखा है स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू राइट. यहाँ पे लिखा है कि 3 वर्ड से आप ज्यादा नहीं लिख सकते. सो इफ यू राइट स्किलफुल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट, इट विल बी 4 वर्ड्स. मेनी ऑफ यू आर टेलिंग कि सर एंड को क्या वर्ड्स में गिना जाता है? हाँ, एंड को वर्ड में गिना जाता है. सो यू कैन नॉट राइट आई मीन एंड तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंड नहीं लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे सर मैं ऐसा लिख दूं स्किल क्राफ्ट्समैन कॉमा आर्टिस्ट, ये समझने वाली बात है, तो वो सेंटेंस ठीक नहीं बनेगा. एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कॉमा आर्टिस्ट, तो वो बैठेगा नहीं.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड तो नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडजेक्टिव स्किलफुल है वो निकालना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट। मैंने देखा काफी लोगों ने आंसर दिया है, उसमें क्राफ्ट्समैन का जो जो लिखा है उसमें क्राफ्ट्समैन है, MEN है। तो अगर आपने MEN के बदले MAN लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो प्लूरल है, और आर्टिस्ट के बदले आपने सिर्फ आर्टिस्ट लिखा तो भी गलत है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ओनली दिस, इससे दूसरा आंसर नहीं आएगा। अगर आपने लिखा है तो उसका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी CRAFTSMEN एंड ARTISTS, यही आपका आंसर होगा। अगर आपने इसके बदले कुछ भी अलग लिखा है, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। हाँ, आप आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन लिख सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन यू शुड नॉट बी राइटिंग क्राफ्ट्समैन MAN और आर्टिस्ट में बदले आपने S निकाल दिया, देन ऑल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। तीसरे का आंसर काफी लोगों का गलत है, आई कैन सी नो काफी लोगों का आंसर तीसरा गलत है, और मैं बताऊंगा ये क्यों है। ऑर्डिनरी इजिप्शियंस एक्सपेक्टेड टू रिसीव डेस फॉर देयर हार्ड वर्क, उनको कुछ मिलता है अपने हार्ड वर्क के लिए। तो यहाँ पे लिखा है यस, इट इज गिवन इन द सेकंड लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ, द पीपल वेर कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड थे, टू सर्व एंड वर्क फॉर द स्टेट इन रिटर्न फॉर अ सिक्योर लाइवलीहुड। तो मैंने यहाँ पे देखा काफी बच्चों ने ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने सिक्योर लाइवलीहुड, आपने ये कर दिया है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, ये प्रॉब्लम ये है कि सिक्योर लाइवलीहुड ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऑर्डिनरी इजिप्शियंस एक्सपेक्टेड टू रिसीव, आर्टिकल मिसिंग है, और यहाँ पे देखो लिखा है असिक्योर, यहाँ पे हाँ ये रहा, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन दैट अ लिखा है यहाँ पे। तो अगर आपने नहीं लिखा, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे असिक्योर लाइवलीहुड लिखना जरूरी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी असिक्योर लाइवलीहुड। काफी लोगों ने सिर्फ सिक्योर लाइवलीहुड लिखा है, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। इज इट नाउ क्लियर? अब देखिए इतनी छोटी सी मिस्टेक है, इसमें आपने काफी लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं। तो जयश्री ने भी गलत लिखा है, आई कैन ऑल्सो सी दैट तेजस हैज रिटन राइट। फिर लिखा है पंकज इज ऑल्सो रिटन सिक्योर लाइवलीहुड, नहीं लिखा है। सनाया इज ऑल्सो रिटन सिक्योर लाइवलीहुड, नहीं लिखा है। काफी लोगों ने मिस किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आप 3 वर्ड्स लिख सकते हो तो व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव एन आर्टिकल? तो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन, यहाँ पे लिखा है, देखिए कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। सो इट इज गोइंग टू बी असिक्योर लाइवलीहुड, बिल्कुल क्लियरली लिखा है यहाँ पे नहीं मिसिंग है, तो यहाँ पे भी आपको असिक्योर लाइवलीहुड लिखना पड़ेगा, और एल्स द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज रॉन्ग आंसर। सर बहुत अच्छा रीडिंग गया था, बेंड्स क्यों अच्छे नहीं मिले, इसका कारण ये है। ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 4 to 7। बहुत छोटा है, याद रहे डायग्राम अगर छोटे पोर्शन को कवर करता है तो आंसर मे और मे नॉट कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, आई जस्ट मेक योर वर्क क्लियर, कि पहले देखो ये कीवर्ड है आपका किंग्स चैम्बर कहाँ पे है, वेयर इज किंग्स चैम्बर, बिकॉज दैट्स द ओनली, और 756 फीट कहाँ है, तो मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो किंग्स चैम्बर कहाँ पे है देखो जरा, 756 ये रहा, हाँ तो इसका मतलब ये आपका एक आध ये इसके आजू बाजू होगा, और किंग्स चैम्बर कहाँ पे, ये रहा किंग्स चैम्बर, मतलब इसके इर्द गिर्द, मतलब आपका आंसर सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। इट शुड बी इन दिस पोर्शन, ये आपको पता चल जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डू इट। पंकज, आई एम नॉट गेटिंग योर यू नो क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। ओके, जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल है। फिफ्थ का तो बहुत आसान आंसर है।
ठीक से देखो। एयर चैम्बर्स कहाँ है राहुल? हम्म, आपका आंसर 4 या 5 लाइन में ही है स्टूडेंट्स। इट इज एब्सोल्युटली इन द लास्ट 4 और 5 लाइंस ऑफ दिस पेज। Okay, let me know when you are done. Okay, so shall I tell you the answer students? देखिए यहाँ पे छोटा धीरे धीरे काम करते हैं। Let me help you out. See, so first and the foremost thing, I'm starting reading from here. It stands with, yeah. So okay, okay, यहाँ से start होता है। King's Chamber सा यहाँ पे है। At the center of the pyramid, I want everybody to concentrate now. At the center of the pyramid is the King's Chamber. ये रहा आपका King's Chamber, तो ये आपका King's Chamber है, ठीक है? This is going to be your King's Chamber. And leading down, यहाँ से नीचे उतरता है। From there is a long narrow area. ये long, ये लंबा सा narrow area है। Down है, तो डाउन मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। पहले तो ये समझना पड़ेगा, ऊपर है इस तरफ है, डाउन मतलब नीचे। और उस एरिया को हम कहेंगे द ग्रांड गैलरी। क्या कहेंगे इसको? द ग्रांड गैलरी। तो आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी, क्या होगा? आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी ग्रांड गैलरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रांड, GALLERY। ये सारे आंसर्स आप क्या करेंगे? नोटबुक में लिखेंगे, यू नो, विद कैपिटल्स में लिखेंगे। मैं वापस कहना चाहूंगा, रीडिंग और लिसनिंग के सारे आंसर्स आप लिखोगे कैपिटल्स में। यू आर गोइंग टू राइट दैट इन कैपिटल्स, अंडरस्टूड? एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन विद हेल्प ऑफ पेंसिल। अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट माय कर्सर, ग्रांड गैलरी में यहाँ पे हूँ। यू कैन सी माय कर्सर। द पिरामिड कवर्स 13 acres and contains 2-3 not blocks of limestone, each weighing an average of 1.5 tons. Its pyramidal form has perfectly square base with sides of 756 feet and a height of 481. तो ये क्या हुआ? ये होगा आपका आंसर 481। याद रहे 481 के साथ उसको आपको इसकी यूनिट भी लिखना पड़ेगा। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज गोइंग टू बी 481 फीट। आई एम राइटिंग ओवर हियर। अब आगे बढ़ते हैं। situated directly below the king's chamber is the queen's chamber। तो ये किंग्स चैम्बर के एग्जैक्टली नीचे जो है, जो छठा है, दैट इज गोइंग टू बी योर क्वींस चैम्बर। यहाँ पे लिखा है, सो आप लिखोगे क्वींस चैम्बर। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, क्वींस, QUEEN। और यहाँ पे याद रहे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जहाँ पे लिखा है। सो यू नीड टू राइट दिस, अपोस्ट्रोफीज लिखना पड़ेगा। आपने सिर्फ क्वीन चैम्बर लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू राइट प्रिसाइजली क्वींस चैम्बर, क्वींस चैम्बर। सो ये एपोस्ट्रोफी एस होना जरूरी है और स्पेलिंग भी सही होना जरूरी है। ये सारे चीजें आप कैपिटल में लिखोगे। प्लीज राइट, मेक श्योर दैट यू राइट इन कैपिटल्स। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। एंड देयर आर 2 एयर चैनल्स लीडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिरामिड टू द आउटसाइड। टू द आउटसाइड, 2 एयर चैनल्स ऊपर की तरफ है। तो ये 2 लिख रहा है, तो सेवंथ का आंसर जो होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 एयर चैनल्स। आई एम राइटिंग दिस इन कैपिटल्स, 2 एयर चैनल्स। यहाँ पे याद रहे, अगर आप 2 एयर चैनल्स लिखते हो
तो आपको 2 लिखते हो तो पीछे चैनल्स लिखना पड़ेगा. सो आंसर ऑफ 7th इज गोइंग टू बी 2 एयर चैनल्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? नाउ any questions, any doubts on this? Yeah, the Grand Gallery is right. Grand Gallery is also right. Absolutely. Understood now everybody? Any questions, any doubts on this? Any questions, any doubts on this? Okay, fine, great. Pankaj, can you give me a call tomorrow? I mean, yeah, I'll be able to solve your doubts. कल आप मुझे फोन करेंगे? या एड चैनल्स सही है, एड चैनल्स होना चाहिए. 2 एड चैनल्स भी चलेगा. एड चैनल्स अकेला होगा तो भी चलेगा. I repeat, even if the answer is air channels, the answer is going to be, right. Jayashree, the answer is going to be right. Air channels अकेला होगा तो भी चलेगा, right. Air channel अकेला होगा तो भी चलेगा. 2 air channels भी चलेगा. So should not be an issue about that part. Clear? Okay. Now एक बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ. We are running out of time. इसके बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बेहतरीन चीज लेने वाला हूँ जो आप सबके लिए काम की है. I know many of you, are applying for, student visas through Canada और permanent residence भी apply करना चाहते हो आप लोग. तो आप सब बोलोगे कि सर मेरे पास तरीके कौन से हैं. फॉर एग्जांपल परमानेंट रेसिडेंस के यहाँ पे रेसिडेंस मिस हो गया है, रेंस नहीं है, रेसिडेंस है. तो बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मेरे पास कौन से तरीके, मैंने पढ़ाई कर ली वहाँ पे, आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज, तो मैं सर किस तरीके से, कौन से पाथवे पे आई कैन अप्लाई फॉर द पीआर. नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, दोज हु आर गोइंग ऑन पीआर, उनको यहाँ पे वेस्ट करवा के जाना पड़ेगा. उनके लिए 2 पाथवेज है इसमें से. लेकिन जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहे हैं, जो काफी लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए 3 पाथवे है ताकि आप अपना पीआर वहाँ पे करवा सको. मैं एक चीज यहाँ पे गौर से कहना चाहूंगा. फॉर इंस्टेंस आपने 2 साल की पढ़ाई की, 1 साल की पढ़ाई की, आपको शायद पता होगा आपको वीजा सिर्फ 2 साल का मिलेगा. व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजास, you only will be getting a visa of 2 years. Now, once you complete your course, उसके 3 महीने पहले आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और वर्क परमिट मिलने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर पीआर. तो पाथवे पहला आपके लिए ये समझने वाली बात है, इट इज बेसिकली द फर्स्ट पाथवे इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. नाउ ये किसके लिए होता है? ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास किसके लिए होता है? वहां पे आपका एक्सपीरियंस होता है उसके लिए. नाउ आई वांट समबडी टू रीड. जुल्फी, कैन यू हेल्प मी आउट रीडिंग दिस? या जुल्फी, कैन आई अनम्यूट यू? Yes, sir. Can you read this? Operated through? Operated through the Express Entry Immigration System, the Canadian Experience Class CEC program is one of the fastest ways to obtain Canadian permanent residence. While there are a range of eligibility factors for this program, including age, language proficiency, and level of education, a distinguishing requirement is that applicants prove they have at least 12 months of continuous full-time skilled work experience in Canada within the previous 3 years, or an equivalent amount in part-time experience. Once an international student obtains this level of work experience, CEC may become a great immigration option. सो जो बच्चे जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहे हैं, तो उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है. फर्स्ट करो आपने पढ़ाई की खत्म और डायरेक्टली वहाँ पे चले गए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. आपने सिर्फ 1 साल वहाँ पे काम करना है. अगर आप 1 साल काम करते हो फुल टाइम, या तो फिर पार्ट टाइम 2 साल, या तो फिर इसके इक्विवेलेंट अगर काम करते हो, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाओगे. उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, नाम ही उसका है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, मतलब आपके पास कैनेडा का एक्सपीरियंस होना जरूरी है. दिस इज द फर्स्ट पाथवे. ये पाथवे पीआर वालों के लिए नहीं है. यहाँ से जो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये पाथवे उनके लिए नहीं है. ये बच्चों के लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हैं एंड दे हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ओवर देयर. दूसरा पाथवे तो सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट वाले हैं या पीआर वाले हैं. दूसरा पढ़िए. Federal Skilled Worker Program. Operated through the Express Entry Immigration System, the Federal Skilled Worker FSW program may be an option for some international student graduates. Unlike the Canadian Experience Class CEC, FSW does not require a person to have Canadian work experience. So this is a good option for international student graduates who already gained skilled work experience abroad. फर्ज करो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि कोई बच्चा है, लेकिन यहाँ पे उसके पास एक्सपीरियंस शायद 1-2 साल का है, 2-3 साल का है. काफी बच्चे मेरे पास ऐसे भी है जिनका यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का, 1 साल का. तो ऐसे केस में दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फेडरल स्किल वर्कर गोइंग ओवर देयर. सो वहाँ पे उनके लिए 2 ऑप्शंस हो जाएंगे. एक तो जो पहला था सीईसी,
जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, और दूसरा है फेडरल स्किल वर्कर। अगर इन दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं होता आपका, तो तीसरा ऑप्शन है ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। तीसरा पढ़े जरा। Each of Canada's provinces and territories operate their own immigration programs called Provincial Nominee Programs (PNPs). Every PNP works differently since they are designed to meet the needs of that specific province or territory. Many PNPs give preference to applicants who have some kind of connection to the province, including previous studies completed within the province and work experience gained in the province. Depending on the province where an international student completed their program of study, they may be eligible to apply for a PNP within that province. तो पहला जो पाथवे था, कैन यू ऑल टेल मी, कैन यू रिकॉल व्हाट वाज द फर्स्ट पाथवे? याद है? लिखो चैट बॉक्स में, आपको याद होना चाहिए। वहां पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जाते हो, थोड़ा ये भी देखो कि मैं पीआर कैसे ले पाऊंगा। तो पहला कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट वन? याद आ रहा है? कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दैट इज व्हाट वी कॉल अ सीईसी, आया ना? दूसरा है फेडरल स्किल वर्कर, दूसरा है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उनके लिए जो जहाँ जिनका वहां पे एक्सपीरियंस है। दूसरा है फेडरल स्किल वर्कर, वो लोग जिनका यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो और पीआर के लिए भी यहाँ से अप्लाई करते हो तो की बात है। और तीसरा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पे जो वहाँ पे पढ़ा है। फर्ज करो आप सस क्लास 1 में पढ़ाई करने जाते हो, सस क्लास 1 पॉलिटेक्निक में जा रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल। और अगर वहां पे आपने पढ़ाई भी की और आपने थोड़ा काम भी किया, तो वहां पे बहुत अच्छे इजी पाथवे होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, कि जो वहां पे जाते, सिर्फ आपने वहां पे पढ़ाई की है तो भी डायरेक्टली पीआर मिल जाता है। ये भी एक है। वहां पे थोड़ा सा काम कर लिया तो काफी बच्चे जो अंटारियो में जाते हैं, टोरंटो में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि टोरंटो में डायरेक्टली पीआर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो क्या करते हैं, चले जाते हैं सस्काचुवन में। सस्काचुवन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, 3 4 5 6 महीने सिर्फ वहां पे काम करते हो तो भी पीआर मिल जाता है। वैसे ही फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश कोलंबिया है। तो दिस आर ऑल्सो फ्यू ऑफ द वेज बाय विच यू कैन गेट द पीआर। क्योंकि हम लोग वी आर ऑल्सो लॉयर्स, तो विल हेल्प यू आउट वंस यू रीच ओवर देयर, कैसे करना है। और एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, जिनका स्टूडेंट वीजा मिल जाता है, एक छोटा सा काम आप करवा सकते हो, वो करवा सकते हो आप, डब्ल्यूएस में ईसीए रिपोर्ट करवा सकते हो, अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल एवोल्यूशन। इससे क्या होता है, असेसमेंट जिसको कहेंगे। आप जब वहां पे जाते हो, 2 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको वेस्ट का रिपोर्ट करवाना पड़ता है। अब वेस्ट के रिपोर्ट के लिए आपको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिकॉज यू नीड टू गेट फॉर इंस्टेंस यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी है, उससे काफी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में हम जो बच्चे जिनका स्टूडेंट वीजा लग जाता है पीआर के लिए, तो उनको पहले से ही करवाना पड़ता है। जिनका पीआर स्टूडेंट वीजा लग जाता है और उनके पास 1 आध 1.5 महीने रह जाता है, तो हम उनको ये कहेंगे कि आप वेस्ट करवा के जाए, क्योंकि वेस्ट की वैलिडिटी 5 साल होती है। तो उससे फायदा ये होगा कि आप वहां पे जाते हो, क्योंकि कैनेडियन डिग्री का वेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉरेन डिग्री का वेस्ट करवाना पड़ता है। फॉरेन डिग्री मतलब इंडियन डिग्री आपके केस में। तो आप ये वेस्ट करवा के जाएंगे, तो आपको वहां पे जाके जब पीआर के लिए फाइल रखते हो, पीएनपी के लिए रखते हो, तो आपको ये दौड़ा भागी नहीं होगी। आपको अपने पेरेंट्स को दौड़ाना नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स मेरा वो लेके आइए। अगर आपने फर्ज करो रहते यहाँ पे हो, डिग्री आपकी बेंगलोर की है, तो सोचो कितने पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे केस में अगर आपका स्टूडेंट वीजा करियर मेकर्स में लग जाता है, उसके बाद विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द वेस्ट, ताकि आपको वहां पे जाके दिक्कतें ना हो। सो आई रिपीट, 3 प्रोग्राम्स पाथवे है। पहला है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास फॉर दोज हु हैव गॉट एक्सपीरियंस इन कनाडा, दूसरा फेडरल स्किल वर्कर जिनका बाहर का एक्सपीरियंस है, और तीसरा है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। इज इट गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड नाउ? सो दिस वाज जस्ट हमारा जो हर वक्त मैं सेशन लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का आपको ये भी नॉलेज देता हूँ, क्योंकि हम लोग आईएलटीएस कर ही तो इसलिए रहे हैं कि आपको बाहर जाना है और बाहर का नॉलेज जरूरी है। क्लियर? Thank you so much, students. It is almost 12:20 according to my watch. So I'll be taking a leave. I hope you enjoyed the session, students. Yeah, thank you so much, students. Thank you. Thank you very much. Yeah, so Bharti, you got exams on 7th speaking में है. I have some doubts. Bharti, आप मुझे कल कॉल कीजिए. I'll help you out. Thank you so much, students, for your guidance. Yeah, thank you so much. So वैभव, ये आपको काम करेगा। ये अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो आपको काम करेगा वहाँ पे। Clear? I'll help you on that. Okay. See, students, the biggest advantage of getting the file done through career makers is that we'll also help you out कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। ज्यादातर स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, उनका काम होता है आपको भेज दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन बिकॉज वी नो एंड टू एंड प्रोसेस, तो हम आपको ये भी गाइड करेंगे वहां पे जाके कैसे करना है। सो पंकज, यू कैन गिव मी कॉल टुमारो वंस अगेन। या 5th को है आपका स्पीकिंग। ओके ओके, ग्रेट। सो जस्ट बोथ ऑफ यू हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड टॉक टू मी टुमारो। अंडरस्टूड? You can call me tomorrow at 11 p.m. 11 a.m. sorry.
Okay, thank you so much, students. Thank you. Have a nice Sunday.